Hello, बच्चों. Welcome back to Let's Do Chemistry. So today's topic is the relationship between Kp and Kc. And as you know that Kp is the gaseous equilibrium constant and Kc is the aqueous equilibrium constant. So this relation is very important. Okay. तो आज हम इस पे बात करेंगे. तो सबसे पहले व्हाट इज द केसी. ओके. तो केसी उससे पहले मैं एक बताने जा रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है वो है इक्विलिब्रियम. ओके. चैप्टर नंबर 7th. ओके. क्लास 11th. तो अगर आपके पास बुक है तो जल्दी से इसे बुक ओपन करो, वरना नोटबुक के साथ इसे नोट करते रहना. ठीक है. तो सबसे पहले ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं. ओके. सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सारे इसमें न्यूमेरिकल भर भर के आते हैं. तो इसलिए ये जो रिलेशन है बिटवीन के पी एंड के सी, इसको माइंड में सेट करना है. तो आज उसी के लिए हम यहाँ पर काम करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम केसी जानना है ये केसी है क्या. ठीक है. तो केसी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. सपोज ये कोई रिएक्शन है, ए प्लस बी जनरल रिएक्शन है. ओके. हम जनरली रिएक्शन दिए, ए प्लस बी इज रिवर्सिबल, सी प्लस डी. ओके. so kc, what is the kc? Kc is the aqueous equilibrium constant. Aqueous equilibrium constant. Okay. So the concentration of c and concentration of d upon concentration of a and concentration of b. Okay. Now understand what is the kc. Kc is the equilibrium constant for the liquid state. Okay. So on other hand we have the kp. Okay. Kp. So kp, p means pressure and k is the equilibrium constant. So that means the kp is the gaseous equilibrium constant. मीन if अगर कोई रिएक्शन है हिंदी आई मीन वो गैसियस स्टेट में हो रही है, जैसे यहाँ पर दिख भी रहा है. देखो गैसियस स्टेट में है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है ना. तो यहाँ पर सारे गैसियस स्टेट में है. तो यहाँ पर अगर केपी निकालना है तो देखो क्या करेंगे, द प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट, द प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन द प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट. सो प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, pressure of the hydrogen, okay, upon pressure of the carbon monoxide and pressure of the water vapor. Okay. Water vapor. Clear? Because water is the in gas phase here. Okay. That's why I'm saying the pressure of the water. Okay. So kp is the equilibrium constant also like kc. Okay. But the state will be different. Okay. In kp and kc. kp गैसियस स्टेट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एंड ऑन अदर हैंड kc इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड स्टेट. ओके. नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द difference between kp and kc. Okay. So let me tell you one thing. Okay. What is the r? As you know that, okay, you know very well the ideal gas equation. What is the ideal gas equation? pv is equal to nRT. Okay. nRT. pv is equal to nRT. So pv is equal to nRT. In pv is equal to nRT, you know very well what is the r. R is the gas constant. Okay. Universal gas constant. So same here. Okay. R is the gas constant. Okay. R is the gas constant. And T is the temperature. Okay. T is the temperature. Like pv is equal to nRT. Okay. So relation between kp and kc. What is the relation between kp and kc? So kp is equal to kc rt to the power del n. Okay. I'm repeating once again. Okay. So write it down. kp is equal to kc rt the power del n. Okay. What is the del n? Okay. So let me tell you what is the del n. Okay. So del n, this is a general reaction. Okay. NOCl, 2 mole of the NOCl will convert into 2 mole of NO plus 1 mole of the chlorine gas. Okay. So the del n is the difference, number of moles, difference between product to reactant. Okay. Number of moles difference, product to reactant. So here the number of moles of product, 2 moles. Okay. 2 moles of the NO and 1 mole of the chlorine gas. Okay. So add it 2 and 1 3 moles and here in reactant 2 mole of NOCl. Okay. So difference between the number of moles of product and reactant is
3 minus 2 is equal to 1. So del n is equal to 1. So when you solve the numerical problem based on this equation, that time you will put del n is equal to 1. Okay, now understand what is the meaning of del n. Okay, so keep in mind one more things. Okay, del n when you will calculate del n values, that time you will count only the product in gaseous state. ओके, कीप इन माइंड गैसियस स्टेट, अगर वो सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट में होगा तो उस वक्त नंबर ऑफ मोल उसके काउंट नहीं होंगे. ओके, मैं समझा देता हूँ. हाँ भी, जैसे कि अगर क्या होता, ये सपोज ये लिक्विड स्टेट में होता, क्या होता, लिक्विड स्टेट में, तो इस वक्त क्या करते हैं हम, जो नंबर ऑफ मोल होते हैं ना, इसके काउंट नहीं करते, इसके काउंट नहीं करते, केवल किसके काउंट करते, इसके काउंट करते. तो इसके कितने मोल हो गए थे, तो डेल एन इज इक्वल टू प्रोडक्ट का 1 मोल हो गया, रिएक्टेंट का 2 मोल, तो टोटल -1. ये ध्यान रखना है, केवल जब डेल एन निकालोगे तो आप केवल गैसियस, उसकी जो स्टेट लिखी है बगल में, उसका जो स्टेट है, ओके, एज यू नो दैट देयर इज ओनली थ्री स्टेट ऑफ द मैटर, यू नो, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड. ये जो स्टेट बगल में लिखी रहती है किसी भी इक्वेशन में, तो वो इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेल एन निकालने के लिए. ठीक है, सो ये भी तुम्हें समझ में आ गया कि डेल एन कैसे निकालेंगे. ओके, तो डेल एन निकालने के बाद अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है, ओके, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आई और आपने आपको वहाँ केसी दिया होगा, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया होगा, कंसंट्रेशन बेस्ड. ओके, आर की वैल्यू भी दी होगी, आर की वैल्यू जनरली गैस कांस्टेंट हमें याद भी होती है, बट अगर हमको नहीं है तो वैसे इक्वेशन में लिखी होती है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में, और टी की वैल्यू टी भी आपको गिवन होगा. ओके, और डेल एन आप निकालना होगा और आप वैल्यू पुट करेंगे तो केपी की वैल्यू निकल आएगी. तो ये रिलेशन आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हमेशा इसको संभाल के रखना. और ओके, और अभी अगर आपने बुक खोली है तो जल्दी से इसे हाईलाइट कर दीजिएगा. ठीक है, तो रिलेशन आज का जो टॉपिक था वो मैंने इसीलिए बनाया था क्योंकि रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा दिल में बसा के रखना है. Kp is equal to Kc del n, I mean RT to the power del n. Okay, so Kp is equal to Kc RT to the power del n. सबको समझ में आ गया ना, वेरी गुड. ओके, अगर किसी को समझ में नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc. ओके, यस, मैं और भी आगे पढ़ाऊंगा, इसको फिर से पढ़ाऊंगा. ठीक है, हमेशा रेगुलर बना रहूँगा और यूट्यूब पे लेट्स डू केमिस्ट्री में. ओके, आप हमारी वीडियो को लगातार देखते रहें और कमेंट भी करते रहिएगा, शेयर भी करते रहिएगा. और अगर कोई भी टॉपिक है, और हम हमेशा अपडेट रहते हैं, कोई भी फॉर्म आता है उसकी आपको नोटिफिकेशन देते रहते हैं. ओके, हमारे यूट्यूब चैनल पे, और इसलिए हमेशा सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने फ्रेंड से भी करवा देना. ओके, ताकि वो भी अपडेट रह सके. तो आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं. ओके, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग. और इस रिलेशन को हमेशा याद रखना, व्हाट इज द रिलेशन, क्या है, Kp इज इक्वल टू Kc और RT है, RT और की पावर क्या है, डेल एन है, RT की पावर क्या है, डेल एन है, और RT टू द पावर डेल एन. डेल व्हाट इज द डेल एन, एन इज द सिंबल ऑफ द मोल. ओके, एन, एंड व्हाट इज द मोल, व्हाट इज द मोल, टेल मी. मोल इज द यूनिट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर. ओके, यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर. ओके, 7 फंडामेंटल यूनिट याद है ना, 7 मूलभूत इकाइयां, वो कौन कौन सी होती है, उनमें से एक मोल भी होती है ना. पदार्थ की मात्रा किस में ली जाती है, मोल में ली जाती है. ओके, सो कीप इन माइंड, पदार्थ की मात्रा को मोल में लिया जाता है, तो मोल उसकी क्या होती है, यूनिट होती है. तो ओके, यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, डेल एन पर, डेल का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स. ओके, बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट. सो यहाँ पर उनका डिफरेंस कर देंगे और ये हो जाएगा. अभी हम इसके बाद फिर न्यूमेरिकल भी लाएंगे इस पे. ठीक है, अभी मैंने केवल इंट्रो करा रहा हूँ, जो हमारे फॉर्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसके बाद हम न्यूमेरिकल करवाएंगे. ठीक है, और फिर IITs के क्वेश्चन भी लाने वाले हैं. ठीक है, लेकिन उससे पहले मैंने फॉर्मूला इसलिए करवा रहा हूँ कि बार बार तुम्हारे सेटअप हो जाए माइंड में, और फिर उस समय हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो तुम्हें याद आ जाए. ठीक है, तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग. ओके, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, बाय.